Hello, my dear student. Today I'll start French Revolution. Third topic. France abolishes monarchy and become a republic. Today, in previous video, we talk about the outbreak of the revolution. We talk about National Assembly of Third State, and also revolts start at the Bastille in the end of special privileges. Revolt starts at the Bastille. We talk about due to the winter harvest was severely affected in France, which led to the increase in price of essential commodities. After spending hours in a long quizzes at the bakery, crowds of angry women raid the shops. We also talk about on the 14th July 1789, an agitated crowd destroyed the Bastille. The Bastille was hated by the all French as it symbolized the dominating power of the king. We also read in the countryside rumors spread from village to village that the lords of the manor had hired bands of brigands to destroy the ripe crops. We also read, hearing this rumor, peasants attacked Chateau in the many regions of France. The peasants looted, hoarded grain and burnt documents containing records of the manorial dues. Due to all these, a large number of the nobles moved to the neighboring countries. We also talk about end of the special privileges. Seeing the power of revolt, Louis XVI recognized the proposal of National Assembly that his power would be checked by a constitution. And also we read on the night of 4th August 1789, France passed the law for abolishing the federal system of the obligation and taxes. We also read the members of clergy were also forced to give up their privileges that were abolished, and lands owned by the church were seized by authorities. By this, the government acquired assessed worth at least to William Libres. After that, this is next video about the French Revolution, which topic name is France abolishes monarchy and become a republic. In this video we talk about the situation in the France continued to be tense during the following years. Although Louis XVI had signed the constitution, he entered into secret negotiations with the king of Prussia. मीन्स फ्रांस की स्थिति आने वाले जो ईयर्स थे उसमें बहुत ही ज़्यादा टेंस से भरी थी. टेंस मीन्स तनाव से. आल्दो लुइस 16 ने संविधान पे साइन कर दिए थे, परंतु प्रसा के राजा से उसकी गुप्त वार्ता चल रही थी. मीन्स सीक्रेट एक बात चल रही थी. Rulers of other neighboring countries too were worried by the developments in France and made plans to send troops to put down the events that had been taking place since the summer of 1789. Before this could happen, the National Assembly voted in April 1790 to declare war against Prussia and Austria. फ्रांस की घटनाओं से जो नेबरिंग कंट्रीज़ थी उनके जो राजा थे वो बहुत ही ज़्यादा टेंस में थे. इसलिए 1789 की गर्मियों के बाद होने वाली ऐसी घटनाओं को कंट्रोल करने के लिए ये जो किंग्स थे अलग अलग कंट्रियों के, उन्होंने सेना भेजने की एक प्लानिंग की. लेकिन जब तक इस योजना पर काम होता, अप्रैल 1792 में नेशनल असेंबली ने प्रसा एवं ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी. Before this could happen, the National Assembly voted in April 1790 to declare war against Prussia and Austria. Thousands of the volunteers thronged from the provinces to join the army. They saw this war as a war of people against king and aristocracies all over Europe. मीन्स कहने का
कि अलग अलग राज्यों से हज़ारों स्वयंसेवी सेना में भर्ती होने के लिए जमा होने लगे। मतलब बहुत से संख्या में अलग अलग प्रांतों से लोग जो है इस स्वयंसेवी सेना में भर्ती के लिए जमा होने लगे। उन्होंने इस युद्ध को एक तरीके से यूरोपीय राजाओं और जो मतलब रिच पीपल थे उनके विरुद्ध जो है जनता की जंग के रूप में लिया। मतलब उन्होंने ये जो युद्ध था उसको ऐसा माना कि ये जो युद्ध है ये राजाओं के ऐसे शासन और प्लस जो रिच पीपल हैं उनके विरुद्ध एक कठोर कदम है। उनके among the patriotic songs they sang was the Marseillaise composed by the poet Roger D. Els। कहने का मतलब कि उनमें उनके होठों पर देशभक्ति के जो तराने थे मतलब सॉन्ग्स थे उनमें कवि रॉजर डी लाइल द्वारा रचित मार्सिले भी थी। कहने का मतलब वो लोग जो It sung for the first time volunteers from Marseille as they marched into Paris and so got it the name the Marseillaise is now the national anthem of फ्रांस। कहने का मतलब कि जिसके कवि जो है रॉजर डी लाइल द्वारा जो रचित थी मार्सिलेज। यह गीत जो था वो मार्सिलेस के जो स्वयंसेवी थे वो गाए थे पहली बार जब वो पेरिस में एंटर कर रहे थे। तब से जो है इस गीत का नाम मार्सिले हो गया और अब ये अभी तक ये फ्रांस का राष्ट्रगान है। The revolutionary wars brought losses and economic difficulties to the people while the men were away fighting at the front. Women were left to cope with the task of earning a living and looking after their families. Large section of the population were convinced that the revolution had to be carried further as the Constitution of 1790 first gave political rights only to the richer sections of the society। जो रिवोल्यूशनरी वॉर्स के जो जनता थी उनको बहुत ही ज़्यादा नुकसान और एक तरीके से इकोनॉमिक्स क्राइसिस झेलनी पड़ी। पुरुषों के मोर्चे पर चले जाने के बाद घर परिवार और रोजी रोटी की जो जिम्मेदारी थी वो औरतों को ही झेलना पड़ा। देश की आबादी के एक बड़े हिस्से को ऐसा लगता था कि जो ये रिवॉल्यूशन के सिलसिले को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। एज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1790 फर्स्ट गेव पॉलिटिकल राइट्स ओनली टू रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। क्योंकि 1791 के जो संविधान थे उन्होंने सिर्फ अमीरों को ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त मतलब उसमें सिर्फ अमीरों को ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त थे। Political clubs become an important rallying point for people who wished to discuss government policies and plan their own forms of action. The most successful of these clubs was that of the Jacobins, which got its name from the former convent of St. Jacobs in Paris. Women too, who had been active throughout this period formed their own clubs. मीन्स टू से लोग राजनीतिक क्लबों में इकट्ठे होकर अड्डे जमा कर राजनीतिक नीतियों पॉलिसीज़ और उनके कार्य योजना पे बहस करते थे, चर्चा करते थे। इनमें से जैकोबिन क्लब सबसे ज़्यादा सफल था, जिसका नाम जो है पेरिस के भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ सेंट जेकब के नाम से पर पड़ा था, जो अब इस राजनीतिक समूह का अड्डा बन गया था। इस पूरी टाइम में जो वुमेंस थी वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव थी, उन्होंने भी क्लब बना लिया था। सेक्शन ऑफ 4 ऑफ दिस चैप्टर विल टेल यू मोर अबाउट देयर एक्टिविटीज़ एंड डिमांड। कहने का मतलब कि जो सेक्शन 4 आप लोग पढ़ेंगे उसमें आप लोग पढ़ेंगे कि औरतें जो हैं औरतों की एक्टिविटी कैसी थी और उनका क्या कार्य था। The members of the Jacobin clubs belonged mainly to the less prosperous section of society. They included small shopkeepers, artisans such as shoemakers, pastry cooks, watchmakers, printers, as well as servants and daily wage workers.
Their leader was Maximilian Robespierre. A large group among the Jacobins decided to start wearing long striped trousers similar to those worn by dock workers. This was to set themselves apart from the fashionable section of society, especially nobles who were knee breeches. कहने का मतलब जोकोबिन क्लब के जो मेंबर्स थे उन्होंने उसमें से मतलब जोकोबिन क्लब्स के जो मेंबर्स थे उसमें मुख्यतः कौन से लोग थे, जो कि समाज के कम समृद्धिशाली लोग थे, मतलब जो कि ज़्यादा अमीर नहीं थे. उनमें इंक्लूडेड कौन कौन थे? स्मॉल शॉपकीपर्स थे, आर्टिसंस थे, शू मेकर्स थे, पास्ट्री कुक्स थे, वॉच मेकर्स थे, प्रिंटर्स थे, इसके अलावा सर्वेंट्स थे और डेली वेजेस मजदूर थे. देयर लीडर वॉज मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर. उनका जो लीडर था, नेता था, वो कौन था? मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर. जोकोबिन के एक बड़े वर्ग ने गोदी कामगारों की तरह धारीदार लंबी पतलून पहनने का निर्णय लिया. कहने का मतलब कि ए लार्ज ग्रुप एमंग द जोकोबिन डिसाइडेड टू स्टार्ट वियरिंग लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर सिमिलर टू दोज वॉर्न बाय डॉक वर्कर्स. मतलब जोकोबिन के जो लोग थे वो जो है किसकी तरह? डॉक वर्कर्स एक तरीके से कौन? गोदी कामगारों. हाँ, गोदी वर्कर्स की तरह जो है वो धारीदार लंबी पतलून पहनने लगे. ऐसा उन्होंने समाज के जो फैशनेबल ग्रुप्स थी उनसे हट के दिखने के लिए किया था. क्योंकि वो लोग जो समाज के फैशनेबल थे, जो कुलीन वर्ग के लोग थे, जो अमीर थे, वो क्या पहनना करते थे? वो एक तरीके से नी ब्रीचेस पहनते थे. नी ब्रीचेस जिसको जो है घुटने आप कह सकते हैं, मतलब उस समय एक तरीके से ब्रीचेस का मतलब घुटना होता है, तो उसको पहना करते थे जो घुटने तक की होती थी. यह ब्रीचेस पहनने वाले कुलून स्पेशली हु वर नी ब्रीचेस. अब देखिए यहाँ कॉन्वेंट का क्या मतलब है? कॉन्वेंट बिल्डिंग बिलोंगिंग टू ए कम्युनिटी डिवोटेड टू ए रिलीजियस लाइफ. मतलब एक धार्मिक जीवन को समर्पित समूह की इमारत. कहने का मतलब एक ऐसी बिल्डिंग जो कि धार्मिक जीवन को पूरी तरीके से समर्पित हो. नेक्स्ट हमारा है इट वॉज ए वे ऑफ प्रोक्लेमिंग द एंड ऑफ द पावर wielded by the wearers of knee breeches. These Jacobins came to be known as the sans-culottes, literally meaning those without knee breeches. Sans-culottes men wore in the addition the red cap that symbolized liberty. Women, however, were now not allowed to do so. कहने का मतलब कि यह ब्रीचेस पहनने वाले कुलीनों की सत्ता समाप्ति के ऐलान का उनका एक तरीका था. कहने का मतलब कि जो वो लोग इस तरीके से पहनते थे तो उसका यही कारण था कि वो अपने आप को जो फैशनेबल ग्रुप्स हैं, मतलब जो नोबल्स हैं, उनसे अपने आप को डिफरेंट दिखाना चाहते थे और उनकी जो एक सत्ता थी उसकी समाप्ति के लिए एक ऐलान करना चाहते थे. इसलिए जोकोबिन्स को सौकुलात के नाम से जाना जाता था, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बिना घुटनने वाले, मतलब विदाउट नी ब्रीचेस. सौकुलात पुरुष जो मैन हुआ करते थे वो लाल रंग की टोपी भी पहनते थे जो स्वतंत्रता का प्रतीक हुआ करता था. मतलब कुलॉट्स मैन वोर इन एडिशन द रेड कैप दैट सिंबलाइज्ड लिबर्टी. वुमेन हाउएवर वर नॉट अलाउड टू डू सो. औरतों को ऐसा करने की इजाज़त नहीं थी. इन द समर of 1792, the Jacobins planned an insurrection of a large number of Parisians who were angered by the short supplies and high prices of food. On the morning of the August 10, they stormed the palace of Tuileries, massacred the king's guard, and held the king himself at the hostage for several hours. Later, the assembly voted to imprison the royal family. Elections were held from now on. All men of 21 years and above, regardless of wealth, got the
गॉट द राइट टू वोट। कहने का मतलब सन 17 मतलब इन गर्मियों में 1792 में जोकोबिन्स ने खाद्य पदार्थों की महंगाई एवं अभाव से नाराज पेरिस वासियों को लेकर एक विशाल हिंसक विद्रोह की योजना बनाई। 10 अगस्त की सुबह उन्होंने ट्यूलेरिये के महल पर धावा बोल दिया, राजा के रक्षकों को गार्ड को मार डाला और खुद राजा को कई घंटों तक बंदी बनाए रखा। बाद में असेंबली ने शाही परिवार को जेल में डाल देने का प्रपोजल रखा। नए चुनाव कराए गए। 21 उस चुनाव के बाद जो है उस चुनाव में 21 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी पुरुष, चाहे उनके पास संपत्ति हो या ना हो, सबको मत देने का अधिकार मिला। ये इम्पोर्टेंट है। इलेक्शन वर हेल्ड, इलेक्शन तो हुआ। फ्रॉम नाउ ऑन all men of 21 years and above regardless of the wealth got the right to vote। ये important है। The newly elected assembly was called the convention on 21st September 1792। It abolished the monarchy and declared France a republic। As you know, a republic is form of government where the people elect the government including the head of गवर्नमेंट। मीन्स टू से कि ये जो न्यूली इलेक्टेड असेंबली थी उसको क्या कहा गया, उसको कन्वेंशन का नाम दिया गया। 21 सितंबर 1792 को इसने राजतंत्र का अंत कर दिया और फ्रांस को एक गणतंत्र घोषित कर दिया। जैसा कि आप जानते हैं गणतंत्र सरकार का वह रूप है। मीन्स कहने का मतलब कि रिपब्लिक क्या है, रिपब्लिक इज़ द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। रिपब्लिक इज फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द पीपल इलेक्ट द गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द हेड ऑफ गवर्नमेंट। कहने का मतलब कि रिपब्लिक क्या है, सरकार का वह रूप है जहां सरकार एवं उनके प्रमुख का चुनाव जनता करती है। कहने का मतलब जहां सरकार का और उनके प्रमुख का चुनाव कौन करता है, जनता करती है। ये रिपब्लिक के डिफिनेशन में इम्पोर्टेंट है कि जहाँ मतलब सरकार का वह रूप जो है जिसमें जो है सरकार का वह रूप जहाँ सरकार एवं उसके प्रमुख का चुनाव जो है जनता करती है। और ये भी इम्पोर्टेंट है, देयर इज़ नो हेरिडिटरी मोनार्की, मतलब वहाँ पे कोई वंशानुक्रम जो राजशाही होती है वो नहीं चलती है। उसके अलावा यू कैन try and find out about some other countries that are republic and investigate when and how they become so। कहने का मतलब कि ये आपके लिए होमवर्क है, एक तरीके से नोट कर सकते हैं और आप हमको बताएंगे भी कि कौन कौन सा वो राज्य है। आप खोज सकते हैं वो कौन कौन सी कंट्रीज़ है जो रिपब्लिक है, और इन्वेस्टिगेट करेंगे आप जो है कि व्हेन एंड हाउ दे बिकम सो, वो जो है कब और कैसे जो है रिपब्लिक हुए। Louis XVI was sentenced to death by the court on the charge of treason on 21st January 1793। He was executed publicly at the Place de la Concorde। The Queen Mary Antoinette met with the same fate shortly after। कहने का मतलब कि लुईस 16 को न्यायालय द्वारा देशद्रोह के आरोप में मौत की सज़ा सुना दी गई। 21 जनवरी 1793 को प्लेस डी ला कॉनकॉर्ड में उसे सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई। कहने का मतलब सबके सामने जो है फांसी दे दी गई। किसको? लुईस 16 को। और उसके बाद उनकी जो रानी थी, जल्द ही रानी मेरी एंटोनेट को का भी वही हाल हुआ, लेकिन कुछ समय बाद। ये हमारा एक टॉपिक था। टॉपिक का नाम था कि एक तरीके से कि कब जो है फ्रांस में राजतंत्र पूरी तरीके से मोनार्की ख़त्म हुई और कैसे वो रिपब्लिक बना। ये फ्रांस की एक टॉपिक था। अब इसके बाद टॉपिक है हमारा राइन ऑफ टेरर। क्या टॉपिक है? राइन ऑफ टेरर, आतंक राज, जो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसको आप लोग पढ़ेंगे, इससे क्वेश्चन बनाएंगे और क्वेश्चन बना के फिर उसके बाद सेंड करेंगे। थैंक यू।